It was 2013 when I had my 12th boards, and that year, 2012 to 2013, had been a year of health issues of my father and a financial crisis in the family for, I would say, the very first time, because definitely my father was not keeping well. And that was the most important academic year of my life, 12th boards. At that point of time, I was just working hard, day in and day out, so that in some or the other way, I can make sure that I perform the best possible in that year. Because I think that was the only thing that I could do for my family, for my parents. My dear children of class 12 and class 11, this is for you. Just reiterating my 12th and 11th time. In the year 2012, 2013, I had my 12th boards, or that has been the specific year जिसके अंदर my father was not keeping well. Constantly, he was bedridden. Like almost every month, he was hospitalized. And it was the most important academic year of my life. My mom told me that despite of anything, you have to make sure you perform the best, because that is your responsibility and that is what you can do to make the entire family happy in this particular gloomy time. So जो मम्मा ने कहा वो कहीं ना कहीं दिमाग में बसा हुआ था. My father never insisted me कि बहुत पढ़ो या you have to be a topper, though he was himself a topper, but he always wanted that do the things comfortably. But my mom reminded me time and again that this is what you need to do, because Papa was in a job, and as he was not keeping well, and that being a private job, you can understand the situation. The financial position of the family was not even good at that time. So my mom just wanted that I put in the best efforts to make sure that the family has got a good future ahead, and my father could at least get some sign and signal of relief from me. So I just kept working as hard as possible. Honestly बताऊं तो I did not join any coaching also for any of the subject, and I was the head girl of the school. कई बच्चों को already उसके बारे में पता है, so there were like a lot of additional responsibilities. But ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में बैठी हुई थी, क्या this is the responsibility that I have on me. Especially जो last के 3 महीने होते हैं, 2 महीने, उनके अंदर जो आप पढ़ाई करते हो वो बहुत मैटर करती है. So my accounts, my maths, even I would say my business studies, they were not prepared much well. They were at an okay, at an average position. तो बस मैंने अपना एक सिस्टमैटिक शेड्यूल बनाया और बस लग गई पढ़ने सुबह शाम. एंड एज आई कैन जस्ट रिकलेक्ट, अराउंड कुछ नहीं तो 12 से 14 घंटे every day I used to study. When I was seeing it through my eyes that my father is not well, और कभी उनकी रिपोर्ट्स कुछ ऊपर नीचे आ रही हैं, मामा की क्या कंडीशन है, एंड डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिश्तेदारों का भी यू कैन अंडरस्टैंड सारा रंग दिख जाता है. वो मेंटल प्रेशर के टाइम भी इस चीज़ को ध्यान में रखना कि मेरी जिम्मेदारी इस वक्त क्या है, and that is to work harder and harder and get a better result. So I did the same, gave my exam in March, and then I continued with my preparation of CA and began it immediately from the month of April. और जो जब मई में मेरा रिज़ल्ट आया, सो आई वॉज लाइक ट्रेम्बलिंग लाइक एनी थिंग, आई डोंट नो, जैसे कि किसी भी बच्चे के साथ होगा कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है. एंड आई वॉज जस्ट रनिंग हेयर एंड देयर कि आई डोंट वांट टू फेस एनीबडी, कहीं से भी कुछ कम ना आ जाए. एंड पापा उस टाइम भी हॉस्पिटल में थे, मॉम वॉज देयर विथ हिम, और आई वॉज देयर स्टेइंग विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स. तो जब वो रिज़ल्ट आया, it was around 93% with maths and without any coaching. और आज से 10-11 साल पहले this had a little better position जो आज होती है 90% प्लस वाले की. तो मैंने जाके फॉरन, I still remember I had Activa. मैं बस क्या पता कैसी स्पीड में गाड़ी चलाई है और मैं पहुंची सीधे हॉस्पिटल. And my father was in ICU and I told him that this is my mark sheet and I could get this particular percentage.
and his eyes, I mean, he was just weeping. And mom, again, she had that big smile and proud eyes. Okay, my child, my girl did it. And I was very, very happy, definitely. But why I'm telling you this particular thing, and while stating this entire, बहुत एकदम से मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ. आई थिंक वो उसके बाद मेरे कुछ दिन बाद ही, नेक्स्ट मंथ, आई गॉट माई रिजल्ट ऑफ CPT. आई गेव माई CA का फर्स्ट लेवल एंड CPT का रिजल्ट आया, एंड इवन आई वॉज एबल टू क्लियर दैट विद अ वेरी गुड स्कोर विथ रैंक इन माई सिटी. तो वो मैंने पापा को बताया. These two were the things that made him super happy. And let me just add one more thing to the same. I started earning just after that. तो मैंने अपना पार्ट टाइम करके जॉब भी स्टार्ट कर दिया था while I was preparing for my CA. And while he was there on the bed, I remember I just gave him an envelope with money, and he did not open and check it, but he said it weighs more than the age that you have. तुम्हारी उम्र के हिसाब से तो ये काफ़ी heavy है. This is what he said, and I said नहीं नहीं, I just wanted, and I do something for the family, and he was very happy. And my dear children, within a few months he left us. So then the family was left with my mom, me, and my younger sister. Again, I'll tell you why I'm telling this story with you. It is because you never know that how long do our parents live. I wish everybody is blessed with, I mean, a long life. When I talk about parents, they have long life, but you never know. क्यों क्यों हम अपनी आलस की वजह से, क्यों हम अपनी अदर एक्टिविटीज़ की वजह से इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते कि हमारे पेरेंट्स की खुशी सिर्फ हमसे है. They might be suffering from lot of things, maybe financial crisis. They might be suffering from, I would say, some health issue. They might have lot of mental pressure. And generally they do not put all that before us. क्योंकि वो ये चाहते नहीं हैं कि हमारे दिमाग पे कोई भी टेंशन आए, और वो खुद ही सह रहे होते हैं. बट क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम उनको ये रियलाइज़ कराएं कि आप चिंता ना करें, soon I am going to take the responsibility of family. You can stay relieved, and I will give you the reason of happiness, reason of joy, and make you proud. क्या नहीं हम कर सकते? So with this, I just want you to get reminded that your 12th standard papers are ahead. तुम्हारा पेपर आने में, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, नियरली 37 डेज बचे हैं. उन लोगों का जिनका PE का पहला पेपर है, यू हैव 37 डेज इन योर हैंड जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ. एंड आई एम प्रिपेयरिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर यू which is for the last 35 days, and it is going to be such a detailed and clear strategy, and it's going to be something which I would say 99.99% sure that you will not find anywhere on YouTube, and even your coaching teachers must not have given the same to you. गाइडेंस डेफिनेटली हर टीचर की वैल्यूबल और इम्पॉर्टेंट होती है, बट जो डिटेल स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें देने जा रही हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी अनमैच्ड. तो मेक श्योर कि तुम लास्ट तक पहले तो इस वीडियो को देखो, और उसके बाद हर एक बात जो मैं कहूँ उसको पेन डाउन करो, और अपने पेरेंट्स को तुम्हें प्राउड फील कराना है. तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू हैव टू मेक देयर आईज शाइन, जस्ट क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट शानदार आया है. वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, वो अपनी स्टोरी पे, वो अपने फ्रेंड सर्कल में ये बात शेयर कर सके कि मेरे बेटे के या मेरी बेटी के 12th स्टैंडर्ड में इतने परसेंट आए. एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर देम, इट्स इवन फॉर यू. You have a career ahead. It's your life. It's going to be your success. And it's going to be, I would say, a representation of your excellence. So whatever has been your performance in the previous years, nobody is going to check out the mark sheet. I would say what you did in your 8th and your 9th and your 11th and your 5th or your 4th, whatever you did, you might have been an average child, you might have been below average child, you might have failed sometime. That's completely fine.
You have the power, you can do it, but I want you to put in that energy with with your positive mindset. Okay, so let's get started and let us discuss the very important, the ultimate plan for you children for the last 35 days. अब बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट, मुझे चाहिए कि हर एक व्यक्ति ये चीज़ का प्रॉमिस करे कि अभी तक जो हो गया सो हो गया, बट इन दीज लास्ट 35 डेज वी विल बी फॉलोइंग दिस प्लान, और आखिरी जो मौका हमारे पास बचा है उसको बिल्कुल भी वी विल नॉट लेट इट गो इन वेन. ओके, so if you can write your promise in the comment section, that would be really good, because जहाँ थोड़ा इधर उधर हो गए तो 2-5 दिन बाद that will be acting like a reminder for you कि यार मैंने मैम को promise किया है and I need to do it. So let us begin. I am extremely excited and I think same is your position, and खुशी तब ज़्यादा बढ़ जाएगी जब तुम उसको फॉलो कर लोगे, क्योंकि प्लानिंग तो तुम पढ़ते ही हो, बिजनेस में बनते तो बहुत प्लान है लेकिन फॉलो सारे नहीं होते. बट आई विश कि ये जो लास्ट और फाइनल प्लान हमारा बन रहा है फॉर द ईयर, हम इसको फॉलो ज़रूर करेंगे. चलिए, सबसे पहली बात आती है कि मैं तुम्हें जो भी बातें कहूँगी, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे 2 मिनट में समझ आ जाएगा कि मैम का क्या प्लान है. मैं तुमको प्लान तुम्हारे 5 सब्जेक्ट के लिए बताने वाली हूँ फॉर द कमिंग 35 डेज. तो यू नीड टू कीप पेशेंस लास्ट तक वीडियो के, और तुमको सब कुछ समझ आ जाएगा कि मैम का ऑब्जेक्टिव क्या है और किस डेप्थ में वो समझाना चाह रही है. ओके, तो सबसे पहले आई एम बिगिनिंग विथ अकाउंट्स. अगर तुम्हारे पास कोई डायरी हो, कोई रजिस्टर हो, तो उसको प्लीज़ लेके बैठ जाओ. दैट वुड बी रियली नाइस फॉर यू, बिकॉज मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी तो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो आता है हमारा सबसे पहला काम, वो है अकाउंट्स का डिस्कशन. तो अकाउंट्स के लिए मैं तुम्हें पहली चीज़ तो चैप्टर वाइज डेज और टाइम तुम्हें कितना देना है वो असाइन कर रही हूँ. तो तुम्हारे पास टॉपिक आता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. जस्ट कीप लिसनिंग मेरा बच्चा, हाँ, पेशेंस के साथ. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सो 3 hours every day for 4 days you have to do this particular topic. Then partnership के basics, which includes 2 topics, your fundamentals and goodwill. इनको तुम्हें 3 hours per day के हिसाब से 3 दिन का टाइम देना है. अगर मैं इसको ब्रेक करवाऊँ तो 2 दिन फंडामेंटल्स को और 1 दिन गुडविल को. आगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पहला टॉपिक विच इज़ योर एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसको 3 hours पर डे 4 दिन का तुम्हें टाइम देना है. एंड यू नो that this topic forms base for the coming topics, इसीलिए 4 days मैंने इसके लिए अलॉट किए हैं. उसके बाद रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, इसको 3 hours देना है 3 days तक. 3 hours 3 hours 3 hours, जिसमें तुम ब्रेकअप ऐसा कर सकते हो कि सपोजिंग 2 दिन रिटायरमेंट और 1 दिन डेथ, या 1.5 day में रिटायरमेंट एंड 1.5 day में डेथ करके. उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. तुमको डिसोल्यूशन 3 hours पर डे फॉर 2 days देना है. तो इस तरीके से तुम्हारा NPO और पार्टनरशिप का रिविजन कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, अब मैम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस प्लीज़ मेरा बच्चा, आई वुड एक्सपेक्ट पेशेंस, एंड इफ़ यू रिमेन पेशेंट, तुम जो सोच भी नहीं सकते सवाल, तुम्हें उनके भी जवाब मिल जाएंगे. तो बस कीप लिसनिंग, ओके, एंड कीप नोटिंग ऑल्सो. अगर तुम स्पीड में नोट नहीं कर पाए हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो. स्क्रीनशॉट लेके काम मत चलाना, बिकॉज स्क्रीनशॉट्स तो मोबाइल में बहुत होते हैं और हम उनको देख नहीं पाते. तो तुम लिख लो तो वो तुम्हारे लिए बेटर है. गोइंग फर्दर, आई एम कमिंग टू कंपनी. शेयर कैपिटल की बात करें तो 3 hours पर डे के हिसाब से 6 days you will sit and do share capital, 6 days. Okay, then issue and redemption of debenture, 3 hours per day के हिसाब से you will give 4 days which you can break up into issue वाला portion और उसके बाद redemption वाला portion. तो 2 days का bifurcation रख सकते हो. उसके बाद आता है financial statement of a company. इसको पूरा दिन नहीं देने की ज़रूरत है because it's a theory topic. 1.5 घंटा दे दो. So 1.5 hour is what you have to give, और 1.5 घंटे में you just close the topic कि हेड सब हेड्स क्या है वो तुम्हें क्लियर हो, जो भी थोड़ा डेफिनेशंस वाले पार्ट हैं. उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच कंप्राइजेस ऑफ योर कॉमन साइज एंड योर कंपेरेटिव्स. तो 1.5 घंटे का टाइम दो एंड ओवर. सो बेसिकली द टारगेट इज कि इसको
और इसको दोनों को मिला के एक दिन 3 घंटा फ्लैट देके दोनों को क्लोज कर दो. देन वी गो फर्दर एंड वी टॉक अबाउट रेशियोज. रेशियोज को 3 आवर्स पर डे 3 दिन का टाइम दे दो एंड क्लोज दिस टॉपिक. ओके, एंड कमिंग फाइनली टू योर कैश फ्लो स्टेटमेंट, 3 आवर्स का टाइम दो 4 दिनों के लिए. तो इस तरीके से आई जस्ट ओपन द स्लाइड्स वंस अगेन. ये फर्स्ट स्लाइड थी. यू मे टेक स्क्रीनशॉट एंड इफ यू नोट दैट वुड बी बेस्ट. सेकेंड इज दिस which is covering your company, and then this is your third part जिसमें तुम्हारे रेशियोज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो मतलब एनालिसिस का पार्ट आ जाता है. अब मैं इनका टोटल कहती हूँ तो इनमें हो रहा है तुम्हारे 34 डेज. 34 डेज. और ये जो प्लान है हमारा इट इज़ फॉर 35 डेज. तो तुमको करना ये है कि जैसे ही 34 डेज में तुम इसको कंप्लीट कर लो, तो आई हैव इवन रिटन द डेट है दैट यू हैव टू राइट पेपर ऑन 14 February. 14 फरवरी को तुम्हें अकाउंट्स का पेपर लिखना है. तो 14 फरवरी को अकाउंट्स का ही पेपर लिखना है और कोई दूसरा काम नहीं करना है. तो राइट पेपर ऑन 14 February, फुल पेपर 3 आवर्स का प्रीवियस ईयर पेपर या सैम्पल पेपर उठा सकते हो तुम बोर्ड का एंड सिट एंड राइट दैट पेपर. तो गिव 3 आवर्स. यू हैव 15 मिनट्स वैसे तो फॉर रीडिंग, बट आई वुड रेकमेंड 15 मिनट्स में रीड करो और 2 आवर्स 45 मिनट्स में तुम पेपर लिखो, जस्ट टू चेक कि यार अगर 15 मिनट कम भी होते हैं तो मैं कैसे कर पा रहा हूँ. बिकॉज वो रियल प्रेशर तो होगा नहीं, रियल प्रेशर तो एग्जाम में ही जाके आता है. तो इसीलिए 15 मिनट कम देके करके देखो कि कितना कंप्लीट कर पा रहे हो अपना पेपर. ओके, अब आती है बात, जब तुम्हारे पास गैप होगा उसमें भी तुमको 2 पेपर्स और अकाउंट्स के लिखना चाहिए. एवरीबडी शुड डू दैट. गैप जब होगा 2 पेपर्स और लिखना चाहिए अकाउंट्स के. तो इन टोटलिटी क्लोज टू एग्जाम 3 बार तुमने अकाउंट्स के पेपर फुल फ्लेजेड लिखे हों ताकि यू आर एबल टू इम्प्रोवाइज योर स्पीड. ठीक है, एंड इवन यू आर वेरी वेरी क्लियर कि प्रेजेंटेशन में को कैसे क्या रख के चलना है. सो दिस इज रिगार्डिंग योर अकाउंट्स. अब हम जा रहे हैं आगे एंड वी वुड टॉक अबाउट योर नेक्स्ट थिंग दैट इज योर इकोनॉमिक्स. तो आपको इकोनॉमिक्स के लिए फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो यू विल बी अलॉटिंग 2 hours per day for 6 days and you will be covering your very important topic which is national income. तो national income को 6 दिन nearly a week का time मैंने allot किया है. 2 hours every day you will be doing it. Next we move on to money and banking, which is not a very tough topic, rather I would say one of the easy topics of macro. So 2 days I have allotted 2 hours every day. One day you can do money, other day you can do banking, so that way you can bifurcate. Then determination of income and employment, so aggregate demand, aggregate supply, ये वाले topic, it's a little complex topic. 4 days is what I have allotted, 2 hours every day time. ठीक है, and then you have got government budget and economy, so 2 hours for 2 days. Not a very big topic and not very difficult, it's average. So we have 2 days and 2 hours every day you have to give. And then balance of payment, foreign exchange market, then I have allotted 3 days for the same, 2 hours on every day basis. तो इस हिसाब से you have to revise your macroeconomics. I'll just hold for a minute so that तुमने नोट करना है तो तुम नोट कर लो and then I'm going ahead. इसको एक बार से ध्यान से देख लीजिए सारे टॉपिक्स और फटफट सामने लिख लो कि मेरे को कितने घंटे हर दिन और कितने दिनों तक उस टॉपिक को कंटिन्यू करना है और क्लोज करना है. ठीक है, so that's about macro. Coming to the second part of economics, that's your Indian economy. So you people have Indian economy on the eve of independence, then 1950 to 1990, next since 1991. उसके बाद तुम्हारे पास आता है human capital formation, rural development, employment, environment और उसके बाद comparative experience. अब बात ऐसी है comparative development experience, बात ये है कि on an average if I say सारे chapters का size more or less same है, except I would say for the third chapter that this is little detailed. इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है. इवन यू में से कि शायद सेकंड में भी किसी किसी को टाइम लग जाता हो बिकॉज डेट्स आ जाती हैं. सो तो मैंने यहाँ अलॉट किया है 2 hours एवरी डे फॉर 2 days आपको देने हैं फॉर ईच टॉपिक. तो 2 दिन के अंदर यू हैव टू क्लोज द टॉपिक. अब तुमको अगर लगता है कि यार किसी में तुम्हें एक आध दिन ज़्यादा लग रहा है तो दैट इज़ फाइन, 3 दिन ले लेना, बट ऑन एन एवरेज 2 दिन के अंदर तुमको हर एक टॉपिक को क्लोज करना है. तो अगर मैं टोटल बात करूँ अब तो 8 टॉपिक्स तुम्हारे इंडियन इकोनॉमी में है, 2 दिन हर टॉपिक, तो 16 दिन तुम्हारे ये हो गए. एंड अकॉर्डिंगली ये पीछे का मैंने कैलकुलेशन सारा लगाया हुआ है. इसके हिसाब से तुम्हारा अराउंड 12 फरवरी तक
12 फरवरी तक सारा रिविजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 13 फरवरी को यू शुड राइट वन पेपर। अगर एक आध दिन तुम्हारा किसी चैप्टर में एक्स्ट्रा लगता है तो 13 की जगह फिर से आ गया 14 फरवरी, जब तुम अकाउंट्स का पेपर लिख रहे हो तो तुम तभी उसी दिन इकोनॉमिक्स का भी पेपर लिख लेना। दैट्स नॉट एन इशू। तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम बैठ के पूरा सिलेबस रिवाइज करो, तुम डेली पढ़ ही रहे थे ना, तो तुम अब इकट्ठा मत रिवाइज करो। द रिविजन इज डन, यू जस्ट सिट एंड राइट द पेपर टू चेक कि मैंने पिछले 10 दिन 15 दिन 20 दिन में जो टॉपिक्स पढ़े मुझे वो कितने याद हैं, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। You may not be able to do it 100% correct, but yes, it's going to give you good amount of confidence कि यार मैंने अगर रिवाइज नहीं भी किया तो जो मैंने 10 दिन पहले या 15 दिन पहले या 20 दिन पहले पढ़ा था वो मुझे कितने हद तक याद है। तो इसलिए गिव दिस पेपर विदाउट एनी लास्ट रिविजन, बस यही जो डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो उसके बाद सीधे पेपर लिख लेना। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पर्पस। ओके, गोइंग टू योर थर्ड सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, दैट इज योर बिजनेस स्टडीज़। अब भाई बिजनेस स्टडीज़ के लिए मैंने चैप्टर्स के सामने मार्क करा हुआ है, तो एक एक करके हम डिस्कस कर लें। सबसे पहला नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, अ फ्यू में फाइंड इट इंटरेस्टिंग। 2 hours एवरी डे, 2 दिन के अंदर यू हैव टू कंप्लीट इट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो तुम्हें मैंने 4 दिन का टाइम दिया है, 2 hours एवरी डे। देन बिजनेस एनवायरनमेंट, 2 hours एवरी डे, 2 दिन का टाइम दिया है, नॉट अ वेरी बिग टॉपिक। देन प्लानिंग, 2 दिन में यू हैव टू कंप्लीट, वही सेम 2-2 घंटे हर दिन पढ़ना है हमें बिजनेस में। ऑर्गेनाइजिंग, 4 दिन का टाइम दिया है मैंने। स्टाफिंग, अगेन आई हैव अलॉटेड 4 days। डायरेक्टिंग, अगेन आई हैव अलॉटेड 4 days। मैंने एक एवरेज बच्चे के हिसाब से ये टाइम अलॉट किए हैं। किसी को लगता है कि मेरा ये टॉपिक पहले से प्रिपेयर्ड है तो यू कैन सेव टाइम देयर एंड यू कैन इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स, तो मैंने एक एवरेज टाइम दिया हुआ है। देन कंट्रोलिंग, नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, 2 days you can get 2 hours each day। Coming to your part B, financial management. Financial management, again it's an important chapter and it's little big chapter। मैंने 4 दिन यहाँ अलॉट किए हैं, 2 घंटा हर दिन। फाइनेंशियल मार्केट, 3 दिन अलॉट किए हैं, 2 घंटा हर दिन। और मार्केटिंग मैनेजमेंट, 4 दिन 2 घंटा हर दिन। अब मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए लिखा है कि जो एग्जाम का गैप हो तब पढ़ लेना है इसको, सो यू मे डू इट दैट वे। या तुम्हारा इकोनॉमिक्स में टाइम थोड़ा बच जाएगा क्योंकि उसका 2 दिन लाइक अराउंड 33 days का शेड्यूल बना है, तो उधर से जो टाइम तुम्हारा बचे तो या तो तुम उसमें यूज़ कर सकते हो कि तुम कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी किसी दिन उठा के पढ़ लो, या गैप में पढ़ लेना। तो नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग इशू, ठीक है। ऐसे इसको तुम्हें निपटाना है बिजनेस को। अब तुम्हारे ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए मेन कॉमर्स वाले। अब मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास हर दिन का तुम्हें अब कैसे हिसाब रख के चलना है, ठीक है। तो तुम्हारा पर डे शेड्यूल ऐसा जाना है, अकाउंट्स एवरी डे यू स्टडी फॉर 3 hours, देन बिजनेस स्टडीज यू स्टडी एवरी डे फॉर 2 hours, देन इकोनॉमिक्स एवरी डे यू स्टडी फॉर 2 hours, इंग्लिश ऑल्सो एवरी डे 2 hours। सो डू नॉट बी लाइक कि मैं 4 दिन उठाऊंगा और इंग्लिश पढ़ के ख़त्म करके रख दूंगा। आप डेली पढ़ते हो और इकट्ठा पढ़ के रख के देते हो, उसमें फ़र्क क्या है। देखो मैं एक बात बताऊँ, ऐसा है कि जब तुम लोग लाइक दिसंबर था या नवंबर था और अपने सब्जेक्ट्स को क्लोज कर रहे थे, तब पिकिंग अप 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम वाज सेंसिबल, कि तुमने 5 दिन दिए 8 दिन दिए, सब्जेक्ट उठाया क्लोज करके रख दिया, दूसरा उठाया ऐसे ही टाइम दिया क्लोज करके रख दिया। अभी ना होने क्या वाला है कि तुम्हारे कुछ पेपर्स उधर होंगे मार्च में एंड के में जाके, कुछ पेपर्स बीच में हो रहे होंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सब्जेक्ट से तुम्हारा बहुत लंबा ही गैप हो गया, बिकॉज कई बार ना वो जो एग्जाम लीव्स होती हैं उनमें जब टॉपिक बहुत दिन बाद उठाओ तो क्लिक नहीं कर रहा होता। तो एडवाइजेबल है कि आप इकट्ठा सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, जैसे मैंने बताया। बहुत सारा एक सब्जेक्ट का एक दिन में ना पढ़ते हुए हर सब्जेक्ट का थोड़ा 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 पढ़ते रहें। कॉन्फिडेंस ये रहेगा कि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी और प्रैक्टिकल इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। तो थोड़ा अकाउंट्स भी पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिकल का भी टू मच नहीं हो रहा, थोड़ा थ्योरी भी पढ़ रहे हो, थोड़ा तुम इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ ले रहे हो। इकट्ठा उठा के पढ़ते हो 3 दिन इंडियन इकोनॉमी तो रिटेन ही नहीं होता, कुछ इतना अपन कंफ्यूज जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पार्ट, इंग्लिश की स्टोरीज भी पढ़ रहे हो, तो इट्स अ गुड ब्लेंड, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे खाना होता है, थोड़ा प्रोटीन, थोड़े कार्ब्स, थोड़े फाइबर्स,
थोड़ा विटामिन मिनरल्स, ऐसे कॉम्पोजिशन करके। हमने कहा नहीं आज तो सिर्फ उठा के पूरा प्रोटीन खा लेंगे और उठा के सिर्फ कार्ब्स ही कार्ब्स खाए जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सबको रख के चलना है, दैट्स द बेस्ट थिंग। इवन सीए वाले बच्चों को भी मैं यही टाइम टेबल बनवाती हूँ, एंड it's a proven timetable that it helps you increase your efficiency to a very high level, really telling you to try it out. अब आता है ऑप्शनल। ऑप्शनल को मैंने 3 आवर्स दिए हैं। अब ऑप्शनल चाहे कोई भी हो, चाहे तुम्हारा ऑप्शनल मैथ्स हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे तुम्हारा ऑप्शनल फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स हो, कोई भी ऑप्शनल हो, तुम उसको 3 आवर्स का टाइम दे के चलो। क्यों पीई को भी 3 आवर्स देना है? बिकॉज पीई इज द फर्स्ट पेपर। तो अब तुम्हारा पेपर 17 को पीई का है, तो यार सबसे पहला वही पढ़ रहा है ना, तो इसलिए हम डेली 3 आवर्स करके करते चले। एंड पी इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें एक्चुअली कई बार बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो इसलिए हम दे दें टाइम। एफर्ट उतना नहीं लगेगा जितना अकाउंट्स में लगेगा या इकोनॉमिक्स में लगेगा, लेकिन रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए 3 आवर्स। मैथ्स में तो देना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ कंप्यूटर्स, तो वो भी थोड़ा सा टफ आ जाता है जिन बच्चों के पास C++ है या जिनके पास IP है, तो गिव टाइम 3 आवर्स एवरी डे बेसिस। एंड इफ़ यू फाइंड कि तुम्हारा ऑप्शनल उतना टफ नहीं है एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड, तो तुम ऑल्टरनेट बेसिस पे दे सकते हो। वो जो बचा टाइम है दैट कैन बी इन्वेस्टेड मे बी इन अकाउंट्स or little bit in economics, wherever you want to do that. Okay, so now this totals to how much? तो 3 and 2 5 and then 7 8 9 10 11 12। तो ये तुम्हारा शेड्यूल बन रहा है 12 घंटे का। ये है 12 घंटे का। मैम हमें सही में 12 घंटे पढ़ना है क्या? हाँ बेटा, अपने को तो और 13-14 घंटे पढ़ना चाहिए। मैंने तो 12 ही घंटे का शेड्यूल बना के दिया है। 24 आवर्स हमारे पास दिन में है। मैंने 50% टाइम ही तुमसे कहा है कि तुम इसमें इन्वेस्ट करो पढ़ाई। अब रेस्ट जो 12 आवर्स बच रहे हैं उसमें से आराम से 7 आवर्स अपनी नींद पूरी करो। एंड स्टिल इफ़ यू चेक यू हैव 5 आवर्स रिमेनिंग इन योर हैंड बेटे, तो 5 आवर्स रिमेनिंग इज सफिशिएंट। यू कैन हैव योर फूड, यू कैन यूज मोबाइल लिटिल बिट, नॉट टू मच ऑफ इट एट ऑल। उसके अलावा you can, if you want to go to your gym, you can do that. You can sit with your family, relax little bit, take short breaks in between, so you have 5 hours for that. So accordingly, तो टाइम को लेके ना हमको बहुत बनियागिरी करना पड़ती है अगर हम चाहते हैं कि रिजल्ट हमारे बेहतर हो पाए, और दिन बहुत कम बचे हैं, तो इस टाइम का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे मैं ले जा रही हूँ आपको, और गैप्स की बात कर लूँ। 17 को तुम्हारा पीई है, तो मैंने जो पूरा शेड्यूल बनाया है वो सब कुछ तुम्हारा 14 तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स। अब अपने पास 15-16 2 दिन एक्सक्लूसिवली पी पढ़ना। इतने दिन से तो वैसे ही 3 आवर्स एवरी डे पढ़ रहे थे, तो आप ये समझो कि अराउंड 35 डेज आप 3 आवर्स एवरी डे पढ़ रहे हो, तो आपका कंसिडरेबल काम हो गया है। और लास्ट के 2 दिन 14 और 15 15 और 16 आप 2 दिन पीई पढ़ेंगे। इसमें आप एक आध पेपर भी लिख लें तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। 17 को शुरू हो जाओ ऊपर वाले का नाम लेके। उसके बाद तुम्हारे पास बीच में ये गैप आता है। अब तुम लोग को अगर ये पता करना हो डिटेल्ड कि मैम कितना कितना टाइम देके मैं अपना बिजनेस स्टडीज रिवाइज कर लूँ इस गैप में, तो कमेंट में डाल देना, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के टाइम से 17 को डला मिलेगा तुमको यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगी। ऐसे ही तुमको यहाँ के बाद लगे कि मैम मुझे 14 दिन में मैथ्स, बिकॉज आई वॉज अ मैथ स्टूडेंट, तो मैम मैं किस तरीके से टाइम डिवाइड करके अपना रिविजन करूँ, बोल देना, आई कैन लेट यू नो दैट। तो जैसे तुमको अपने गैप्स को सही यूज़ करना है, किसी को भी लगता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, डू लेट मी नो इन दी कमेंट एंड आई ट्राई कि मैं उसका वीडियो तुम्हें टाइम पे बना के डाल दूँ कि कोई गैप ना आ जाए। ठीक, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज लुक एट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। ये टेबल तुमको खुद फिल करना है। मैम इस टेबल में क्या है, मैंने तुमको बाइफिकेशन बताया 3 घंटे का, 2 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, है ना। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें आज ही 11th को बैठना है, रात में सुबह दोपहर जब तुम वीडियो ये देख रहे हो बैठना है, और व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम्हें ऐसा एक डायरी लेके या अपना रजिस्टर लेके टाइम टेबल बनाना है जिसमें यू विल राइट द डेट, 11th है 12th है जो भी, यू विल राइट द चैप्टर है। तो मैंने चैप्टर को कितने दिन देने वो बता दिया। जैसे मैंने तुम्हें एनपीओ का शायद 4 दिन कहा, तो तुम लिखो एनपीओ 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 एनपीओ। यू कैन टेक इन एनी ऑर्डर, प्रेफरेबली जो तुम्हारे वीक हैं टेक देम फर्स्ट, और जो स्ट्रॉन्ग है डू देम लेटर ऑन। या तुमको लगता है फॉर एग्जाम्पल शेयर स्टफ लगता है, तो 6 दिन मैंने कहा, तो तुम शेयर्स शेयर्स शेयर्स
ऐसे 6 दिन का अपना टाइम टेबल कैलेंडर बुक कर लो शेयर्स के लिए। फिर तुम्हें इकोनॉमिक्स के लिए कौन सा टॉपिक उठा रहा है वो लिखो, बिजनेस के लिए क्या उठा रहा है वो लिखो, इंग्लिश का क्या उठा रहा है वो लिखो, ऑप्शनल का क्या उठा रहा है वो लिखो। ऐसा ऐसा डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव टाइम टेबल बना होना ज़रूरी है। मैं इसको भी फिल कर देती, लेकिन इसको बनाओ इन द ऑर्डर ऑफ योर वीकनेस। तो मुझे पता है एंड आई थिंक यू विल अग्री विथ मी कि हर बच्चे के लिए वीक टॉपिक्स अलग अलग हो सकते हैं, तो इसको बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए फॉर्मेट मैंने तुम्हें दे दिया, बैठ जाओ, इसको बनाओ। तुम चाहे एवरेज बच्चे हो, चाहे तुम्हारी प्रिपरेशन फुल हो चुकी है, टॉपर हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ऐसा अगर करके रखोगे तो यू हैव अ क्लियर रोड मैप इन फ्रंट ऑफ यू कि यार मुझे अगले 35 दिनों को कैसे यूज़ करना है। जैसे घूमने जाते हैं तो जो लोग आइटिनरी के साथ जाते हैं वो ज़्यादा जगहें विजिट कर पाते हैं, जो बिना उसके जाते हैं वो ढूंढते ही रह जाते हैं। ऐसे ही टाइम का है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा रोड मैप होता है तो तुम्हें हर दिन का पता है मुझे कैसे कैसे काम करना है, तो एफिशिएंसी तुम्हारी आसमान छुएगी। और तुम्हें क्लैरिटी नहीं है तो अब तुम उठ गए, हमने कहा 2 घंटा मैम ने कहा था अकाउंट्स, कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लिया करने लगे, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आ पाएगी जितनी उस बच्चे की आ जाएगी जो ऐसे काम कर रहा है। तो आई होप मैंने जितनी बातें बताई वो तुम्हें सब समझ में आई। और डू नॉट मिस कि तुम इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक इट, make sure कि you leave a note for me and I would love reading a note from your side in the comment section. Thank you so much everybody. Lots of blessings and wishes, and do subscribe to the channel because I'm going to put a lot of important short tricks and videos for you in the coming days. Okay, bye bye, God bless you all, take care.